Hello, everybody. This is Radhika Dua, your co-explorer, mentor, and learning buddy for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. Having said that, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखते हैं कि क्या हम आज करेंगे अपने इस छोटे से YouTube सेशन में। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर सर्विसेज। आज तक आप लोग बहुत सारे रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर गुड्स तो देखते ही आए होंगे, आई एम श्योर, बट दिस फॉर सर्विसेज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फॉर सर्विसेज. सो this session is especially for you all who want to go into the service industry. तो वहाँ पर आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके लिए हमारे पास हैं दो मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड सेकंड इज प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. पहला मेथड बात कर रहा है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द सर्विस इज फुल्ली कंप्लीटेड. अब there is two concepts here, at the time and continuous time. आप अगर एक वक्त में सर्विस देते हैं और वो सर्विस वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाती है, then you can recognize that service in your books of accounts. You can recognize the revenue for that service in your books of accounts. For example, I'll tell you, आप जाते हैं एक योगा सेशन के लिए जाते हैं. So as soon as the yoga session is completed, जैसे ही वो योगा सेशन for 60 minutes, that yoga professional has delivered 60 minutes yoga session to you, he can recognize the revenue for the completed service. He has completed the service. He has completed the service for 60 minutes. He has given you a yoga session. He can now recognize this revenue for the service provided as it has been fully completed. एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पर सेशन पर कंसल्टेशन डॉक्टर आपसे, मान लीजिए पर सेशन डॉक्टर आपसे चार्ज करता है ₹1500. दैट इज पर कंसल्टेशन. डजंट मैटर कि आप एक दिन बाद ही आ रहे हो, 2 दिन बाद आ रहे हो, 4 दिन बाद आ रहे हो. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. डॉक्टर सेज दैट एवरी टाइम यू विजिट मी, फॉर एग्जाम्पल थेरेपिस्ट, जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं, दे टेल यू दैट पर सेशन they are going to charge you. तो per session they charge ₹1500. तो जैसे ही उन्होंने आपको सेशन कंप्लीट कर दिया, 60 minutes done, that person can recognize ₹1500 as revenue in his books of accounts. So completed service contract method says that the revenue is recognized only when the service is fully completed. तो ये एट द टाइम डिलीवरेंस है सर्विस की. एक बारी में सर्विस डिलीवर हो गई, फुल्ली कंप्लीट हो गई, अब मैं इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ. द सेकेंड मेथड दैट आई हैव इज प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, आई हैव ऑन गोइंग सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं एक घर बनवा रही हूँ, सबका सपना घर हो अपना. सो आई एम कंस्ट्रक्टिंग द होम ऑफ माई ड्रीम्स फॉर मी and this requires a lot of time. So I've asked the contractor install one lift for me. Then there should be some fall ceiling. There the rooms are to be renovated in a certain manner. There should be a walk-in closet, etc., etc. However, the way I like. मैंने एक पूरा contract दिया है contractor को कि you have to complete my home for me in a within period of time, within specific period of time, right? अब मान लीजिए कि ये जो मैं 31st of March को खड़ी हूँ, 31st March 2025. दिस कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू राइट कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहता है कि वो कितना परसेंटेज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो. लेट्स से मैंने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट 1 CR का दिया है. आउट ऑफ दिस 1 CR उसने कुछ परसेंटेज कंप्लीट कर दिया होगा. मे बी उसने वो जो लिफ्ट है वो इंस्टॉल कर दी है, द फॉल सीलिंग इज मेड, द वॉक इन क्लोजेट इज मेड. The only thing left is maybe paint बचा हुआ है. There is some flooring that is to be done. There's some work that has been completed and there is some work that is to be completed in the near future, right? So revenue is recognized on the base of the degree of completion of service at the reporting date. Reporting date क्या है मेरी? 31 मार्च.
इस डेट पे कितना परसेंटेज काम आपका हो चुका है, उसके बेसिस पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सो दिस कॉन्ट्रैक्टर कैन रिकॉग्नाइज कि कितना परसेंटेज रेवेन्यू उसका बनता है, कि 1 CR में से मान लो वो 60% काम कर चुका है. अगर वो 60% काम कर चुका है तो 1 CR का 60% रेवेन्यू उसका बनता है. दिस रेवेन्यू ही हैज अर्नड. दिस इज नॉट अनअर्न्ड रेवेन्यू, दिस रेवेन्यू ही हैज अर्नड, क्योंकि उसने 60% काम कर दिया है. सो ही कैन रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इररिस्पेक्टिव उसको मिला है या नहीं मिला है. वी आर नॉट टॉकिंग कि उसको मिल गया, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन करनी है उसे अपने बुक्स में. अक्रूवल याद करो, अक्रूवल बेसिस, राइट. So this person can recognize this revenue in his books of accounts by a proportionate completion method, that is based on the degree of completion of service at the reporting date. Example के through समझते हैं. If a consultant signs a 5 lakh rupees contract for 5 months of service and by 31st March they have completed 3 months, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 31 मार्च तक वो 3 महीने का काम कर चुके हैं, तो कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? 3 लाख. दैट इज 5 लाख का 3/5, दैट इज 5 मंथ्स के लिए 5 लाख है, 1 मंथ के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 मंथ्स, तो 1. तो 3 मंथ्स के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 into 3, which will come to 3 lakh rupees. That is 3/5 of 5 lakh rupees. अगर ये 4 months होता तो क्या आता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होता 4/5 of 5 lakh rupees, right? And so on. And you can recognize this revenue accordingly in your books of accounts. So मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से मुलाकात होगी. Till then, टाटा, बाय बाय, सीएनआरा, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. जो हुआ सब बहुत अच्छा हुआ, जो होगा वो भी बेहतरीन होगा. Just focus on your present. Do not think about your future. Everything will be good. Just for that, for your future, you have to practice today. You have to work hard today. I'll meet you in the next session. Bye bye. Take care.